Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم اے حمیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دی انفوٹینرز۔ بفور وی اسٹارٹ دا ٹاپک آئی ول ریکویسٹ یو کہ آپ ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں اینڈ ہٹ دا بیل بٹن سو دیٹ ان فیوچر آنے والے تمام نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی مل سکیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از دا پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ۔ آپ اگر ہم بات کریں اپنے ذہن کی اور اپنی باڈی کی، تو یہ ہمارا برین ہی ہے جو ہماری پوری باڈی کو فنکشنل رکھتا ہے، اور ہمارا دماغ ہی ہے جو ہمیں بیسیکلی اشرف المخلوقات کا درجہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا تو اس کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھا ذہن دیا، ایک برین کی صورت میں ایک ایسا آرگن دیا جو ہمیں کسی بھی دوسری کریشن کے اوپر سبقت دلاتا ہے۔ یہ ہمارا دماغ ہی ہے جو ہمیں اور جانداروں کے اوپر فوقیت دلاتا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو ہمیں جو ہے وہ ایک اشرف المخلوقات کے درجوں میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر بات کریں سب کانشیس مائنڈ کی تو ٹرسٹ می یہ ایک ایسی چیز ہے اور اس کی صلاحیت اور اس کی کیپیبلٹیز اس حد تک ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک عام آدمی اپنا جو دماغ استعمال کرتا ہے وہ صرف 4 سے 5% ہوتا ہے۔ میرے جیسا، آپ کے جیسا جو ایک عام آدمی جو اپنا ذہن استعمال کر رہا ہے وہ صرف اور صرف ہمارے برین کا 4 to 5% ہوتا ہے۔ جو بہت ہی بڑے انوینٹرز اور سائنٹسٹ گزرے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کی اور میری نسبت صرف 0.few% اپنا ذہن زیادہ استعمال کر پاتے ہیں۔ مینس کہ آپ میں اور مجھ میں یا کسی بھی عام انسان میں اپنے برین کو 100% یوز کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کی بنا پر ہم اپنے برین کی پرفارمنس کو انکریز کر سکتے ہیں۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں وہ ٹیکنیکس بھی ڈسکس کریں گے، بٹ بیفور گوئنگ ٹو دیٹ ٹیکنیک کہ آپ اپنے برین کی پرفارمنس کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ ایکچولی ہمارا دماغ کس حد تک کیپیبل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں۔ انسان کا دماغ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں بخشی ہیں ان میں سب سے پہلی جو صلاحیت ہے وہ یہ کہ یہ کبھی تھکتا نہیں ہے۔ ہمیں جو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے وہ جسمانی ضرور ہوتا ہے، لیکن سب کانشیس مائنڈ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ اٹ نیور فیلز ٹائرڈ۔ آپ کا سب کانشیس مائنڈ کبھی تھکتا نہیں ہے، وہ تھکن کے احساس سے عاری ہوتا ہے۔ ہمارا سب کانشیس مائنڈ کبھی بھی سوتا نہیں ہے۔ انسان کا سب کانشیس مائنڈ کبھی بھی سوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ایک ورکنگ اسٹیٹ میں ڈیزائن کیا ہے اور یہ ہمیشہ ایک فنکشنل اسٹیٹ میں ہوتا ہے۔ انفیکٹ جب آپ اور میں سو بھی رہے ہیں تب بھی ہم بیسیکلی اپنے شعوری دماغ یا کانشیس مائنڈ جو کہ صرف 5% ہے، جس سے آپ اور میں سوچتے، سمجھتے، دیکھتے اور بولتے ہیں، صرف وہ حصہ سو رہا ہوتا ہے۔ باقی کا 95% جو کہ ایکچولی سب کانشیس مائنڈ کہلاتا ہے وہ کبھی سوتا نہیں ہے۔ ایون کہ حالت نیند میں بھی آپ کا سب کانشیس مائنڈ کام کر رہا ہوتا ہے، آپ کے دل کو دھڑکا رہا ہوگا، آپ کے سانسوں کو چلا رہا ہوگا، آپ کی باڈی کے تمام آرگنز چلا رہا ہوگا، ایون کہ آپ کے ارد گرد ہونے والی باتیں ریکارڈ کر رہا ہوگا۔ ہمارا سب کانشیس مائنڈ اپنے ارد گرد ہونے والی ہر انفارمیشن کو اسٹور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک اسٹڈی کے مطابق 2007 تک انٹرنیٹ کے اوپر جتنا ڈیٹا موجود ہے، جتنا ڈیٹا انٹرنیٹ کے اوپر 2007 تک موجود ہے، ایک عام آدمی کا دماغ اس ساری انفارمیشن اسٹور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایگزیکٹلی میں نے یہی کہا کہ ایک عام آدمی کا دماغ اس حد تک صلاحیت رکھتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ 2007 تک جتنا ڈیٹا موجود ہے وہ ایک ہیومن برین میں اسٹور ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کا دماغ ہمیشہ ایک کیمرے کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے اور ارد گرد ہونے والی تمام چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو حمل چند ماہ کا ہوتا ہے، 3 ماہ، 4 ماہ، 5 ماہ، 6 ماہ کا، جو کہ کمپلیٹ بچہ تیار بھی نہیں ہوا ہوتا، یعنی کہ جب سے آپ کا وجود، جب سے آپ کی ایگزسٹنس شروع ہوتی ہے، آپ کے برین کے کچھ سیلز جو کہ ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں، تب سے وہ انفارمیشن ریکارڈ اور اسٹور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو جب پیدائش کے بعد مدرسے میں بٹھانے کے لیے لے کے گئے تو چونکہ وہ پہلی بار قرآن پاک پڑھنے گئے تھے اور اسلامی تعلیمات کی شروعات کر رہے تھے،
जब उनको मदरसे में बिठाया गया और उन्हें कुरान पाक पढ़ाया गया तो उन्होंने 14वें पारे तक पूरा कुरान 14वें पारे तक उन्होंने कुरान पाक सुना दिया। तो दीनी लिहाज से तो हमारे लिए ये एक मौजज़े से कम नहीं है, लेकिन जब साइंटिफिकली जब इस चीज़ को इंटेरोगेट किया गया तो साइंटिफिक एस्पेक्ट से देखें तो चीज़ जो सामने आई वो ये आई कि उनकी वालिदा मोहतरमा माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान थी और पूरा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहते हुए वो कुरान पाक की तिलावत कर रही होती थी। जी हाँ, इसी वजह से ये मिथ्स मशहूर हैं हमारे सोसाइटी में कि जब औरत प्रेग्नेंट हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, सूरह रहमान पढ़नी चाहिए, सूरह यासीन पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो औरत जो हमल से है उसके पेट में मौजूद बच्चे के ब्रेन के कुछ सेल्स भी इस हद तक सलाहियत रखते हैं कि इर्द गिर्द होने वाली इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड और स्टोर कर रहे होते हैं, और ये फैक्ट साइंटिफिकली प्रूवन है। तो नाज़रीन, यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया, ये देखा वो था कि ह्यूमन ब्रेन फैक्ट्स कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किस हद तक पावरफुल है और किस हद तक ताकतवर है। इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करें कि अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग के अंदर एक सलाहियत ये भी रखी है कि हम अपनी लाइफ में आने वाले हर प्रॉब्लम का आंसर अपने सबकॉन्शियस माइंड से ले सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी ज़िंदगी में आने वाले हर मसले का हल जानता है, उसके पास उस मसले के ऑप्शंस, उसके सॉल्यूशन मौजूद होते हैं। उनको ड्राइव कैसे करना है और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करना है, इसके हवाले से अब मैं आ रहा हूँ अपने इस वीडियो के दूसरे टॉपिक की तरफ कि हम अपने ब्रेन की या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइए चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। किसी भी जहन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का या अपनी ब्रेन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के जो पैरामीटर है उसमें यूजुअली 2 टेक्निक्स यूज होती हैं। यहाँ मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूँ कि इंसान के इख्तियार में अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस पार्ट ऑफ योर माइंड रखा है, सब कॉन्शियस माइंड आपके इख्तियार में नहीं है। लेकिन 2 डिफरेंट मेथड हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जिनके थ्रू हम अपने ब्रेन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम उस सब कॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। ये डायरेक्टली नहीं होता, ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्टली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ हम 2 तरीके इख्तियार करते हैं। एक तरीका होता है सजेशंस का और दूसरा तरीका होता है विजुअल टेक्निक्स का। पहले मैं बात करता हूँ विजुअल टेक्निक्स के ऊपर। विजुअल टेक्निक्स के हवाले से अगर बात करें तो मैं आपसे 2 साइंटिफिक स्टडी डिस्कस करूंगा जो कि न्यूरो साइंटिस्ट ने कंडक्ट की हैं। ये दोनों स्टडीज इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको ऑथेंटिसाइज या वेरीफाई कर सकते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसे साइंटिस्ट को जो ह्यूमन ब्रेन के ऊपर रिसर्च करते हों और ह्यूमन न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स को स्टडी करते हों। न्यूरो साइंटिस्ट की स्टडी कहती है कि उन्होंने 2 ग्रुप बनाए, लेट सपोज 10-10 लोगों के। एक ग्रुप को और दोनों ग्रुप को एक सेम बुक दी गई, म्यूजिकल नोटेशन बुक, और सेम सॉन्ग या सेम म्यूजिकल नोट्स को प्रैक्टिस करने को कहा। एक ग्रुप को कहा कि आपने जो है वो फिजिकली पियानो के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। दूसरे ग्रुप को कहा कि जी ये बुक आपके सामने है, आपने इसको विजुअलाइज करना है, आपने अपने जहन में इमेजिन करना है, पिक्चर चलानी है, विजुअलाइज करना है कि आप जो है वो पियानो बजा रहे हैं, फिजिकली आपने पियानो नहीं बजाना। उन दोनों ग्रुप्स को, जिसने एक ग्रुप ने प्रैक्टिकली फिजिकली पियानो बजाना था और एक ग्रुप ने सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन में पियानो बजाना था, विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करते हुए इमेजिन करना था कि मैं पियानो बजा रहा हूँ, उन दोनों ग्रुप्स को 10 दिन तक प्रैक्टिस कराई गई। और 10 दिन के बाद जब उन दोनों ग्रुप्स का लाइव परफॉर्मेंस का इम्तिहान लिया गया तो दोनों ग्रुप की परफॉर्मेंस एग्जैक्टली सेम थी, एग्जैक्ट सेम परफॉर्मेंस सामने आई दोनों ग्रुप्स की। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने ब्रेन की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो मैंने पहली टेक्निक आपको बताई, दैट इज विजुअलाइजेशन टेक्निक, उसकी न्यूरो साइंटिफिक रिसर्च मैंने आपसे डिस्कस की। विजुअलाइजेशन टेक्निक की मैं आपको दूसरी साइंटिफिक रिसर्च आपसे डिस्कस करता हूँ जो कि इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं कि न्यूरो साइंटिस्ट ने एक ग्रुप बनाया 5 लोगों का और दूसरा ग्रुप बनाया 5 लोगों का। इन 2 ग्रुप्स में एक ग्रुप को फिजिकली वेट डंबल दिया गया और उनसे कहा गया कि आप डेली प्रैक्टिस करें कि आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं 10 दिन तक, लेट्स से। और दूसरे ग्रुप को कोई वेट, कोई डंबल नहीं दिया गया, उनसे कहा गया आप विजुअलाइज करें, आप इमेजिन करें कि आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आप सिर्फ विजुअलाइज करें और इमेजिन करें डेली बेसिस पे 1 घंटा कि आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं।
और दूसरे ग्रुप को फिजिकली वेट लिफ्टिंग कराई गई। 10 दिन के बाद जब उन दोनों ग्रुप्स का मस्कुलर मास नापा गया तो वो ग्रुप जो फिजिकली वेट लिफ्ट कर रहा था उसका मस्कुलर मास में 30% इंक्रीज था, और वो ग्रुप जो कि जिसने 1 औंस वजन भी नहीं उठाया, सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज किया, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर अपने दिमाग में जहन में चलाई, विजुअल मेथड यूज किया, उस ग्रुप का जो फिजिकल मास था, मस्कुलर मास था, वो 25% इंप्रूव हुआ था। सो ये जो हमने पहली टेक्निक यूज की कि ह्यूमन ब्रेन की परफॉर्मेंस या सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस कैसे कंट्रोल की जाती है, या अपने ब्रेन की परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जाता है, तो उसमें जो सबसे पहली टेक्निक हमने डिस्कस की वो थी विजुअलाइजेशन टेक्निक, जो कि मैंने 2 न्यूरो साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू आपको यहाँ पे गाइड किया है। अब आते हैं हम दूसरे मेथड की तरफ कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कैसे अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को से जो है वो सॉल्यूशंस ड्राइव कर सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। साइकोलॉजी में माहिर नफ्सियात इसे सजेशन का नाम देते हैं, सजेशन टेक्निक, कि रात को सोने से पहले, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ कोट करता हूँ जो कि अक्सर हमें घरों में हमारी माएँ सिखाती हैं कि बेटा सोते वक्त ये कहना कि जब बिल्कुल सोने लगो तो दुआ पढ़ना, और फिर तकिए से 3 बार कहना कि तकिए मुझे सुबह 10 बजे उठा देना, या तकिए मुझे सुबह 7 बजे उठा देना। तो बिना किसी अलार्म के आपकी आंख 7 बजे खुल जाएगी। एक वो बुनियादी मिथ या वो बुनियादी तरीका है जो बचपन से अक्सर बच्चों को घरों में माएँ सिखाती हैं, और इट वर्क्स। इस मिथिकल टेक्निक को साइकेट्री की ज़बान में या माहिर नफ्सियात की ज़बान में सजेशन का वर्ड दिया जाता है। सजेशन इज अ मेथड जहां आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को थ्रू योर कॉन्शियस माइंड मैसेज देते हैं, मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। लेट सपोज आप जब सोने लेटे तो आपका शऊरी दिमाग सो जाएगा, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कि 95% ऑफ योर बॉडी है, 95% ऑफ योर ब्रेन है, और उसने थ्रू आउट द नाइट जागते रहना है और आपकी बॉडी को के फंक्शंस को परफॉर्म करते रहना है, आपके इर्द गिर्द होने वाली तमाम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते रहना है। उस सबकॉन्शियस माइंड को आपने सजेशन दी और उसने सुबह 7 या 8 बजे आपको रिस्पॉन्ड बैक किया और आपकी आंख खुल गई। ये मेथड सजेशन कहलाता है। इसी तरह इसे आप बहुत सारी और चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल इस्तिखारा भी है कि दीनी लिहाज से हम इसको कहते हैं कि जी आपने इस्तिखारे की दुआ पढ़ी, अपना मसला अपने जहन में विजुअलाइज किया और उसे सोचते सोचते सो गए, फिर आपको ख्यालात और ख्वाब की सूरत में कोई सिग्नल मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि यार इस मसले में मुझे हाँ करनी चाहिए, ना करनी चाहिए। तो ये जो मेथड होता है इसे हम कहते हैं सजेशन मेथड। तो ये वो 2 तरीकाकार है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने ब्रेन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड किसी भी इंसान के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जो कि जिसमें 2 टेक्निक्स हमने यहाँ यूज करी हैं या डिस्कस की हैं, जिसमें पहली विजुअलाइजेशन टेक्निक थी और दूसरी सजेशन मेथड। यहाँ पे मैं आपको एक बुक और सजेस्ट करता चलूँ जो कि आपको इस टॉपिक के ऊपर हेल्प आउट करेगी। मैं कोशिश करूँगा वीडियो के एंड में उस बुक की पिक्चर अटैच कर दूँ। दैट इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दुनिया की तारीख में जो बेस्ट सेलिंग बुक्स रही हैं उनमें से एक किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी हुई है। उस किताब को भी पढ़ें ताकि आप अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में, अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरियाँ ला सकें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन।